किया था Okay. सर। So in today's only we'll do a brief introduction of oxidation number and then we'll start balancing of redox reactions also. So first we'll start from definition of oxidation number. You already know the meaning of reducing agent and oxidizing agent, reduction and oxidation. हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बेटा, है ना? हाँ सर। Yes sir. Reduction का meaning oxidation, if Yes, you sir. remember, reduction का मतलब होता था decrease in oxidation number and oxidation means increase in oxidation number. So reduction means gain of electron or oxidation you can say it is removal of electron. Yes बच्चे किया था ऐसा कि नहीं? Yes sir, किया था। Yes sir. हाँ सर किया था। So okay, so first we'll do brief related to definition of oxidation numbers. I hope कुछ बच्चों ने नाम सुना है और मैक्सिमम बच्चों ने नाम सुना रहेगा। Oxidation number. Oxidation number, or you can say it is oxidation state. The same thing. Here you can imagine if all polar covalent bond of given molecule is assumed to be 100% ionic, then charge appeared on corresponding atoms is known as their oxidation numbers. So if all polar covalent bonds of given molecule is assumed to be 100% ionic, then the charge appeared on corresponding atom is known as their oxidation number. ना ये सब बच्चों को पता है कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या है? नहीं सर। Yes sir, ठीक है, चलो मैं कुछ बच्चों को नहीं जल्दी से सर। पहले यही Yes sir. ठीक है, कुछ बच्चों को मैं जल्दी से पहले यही बता देता हूं कि ये ऑक्सीडेशन नंबर या यू कैन से कि भाई पोलर या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या है. फॉर एग्जांपल, if we have bond between hydrogen and hydrogen, if we have bond between hydrogen and chlorine, if we have bond between sodium and chlorine. So sodium and chlorine means highly electropositive metal and highly electronegative non-metal. So there has to be covalent bond and ionic bond between Na and Cl. कौन सा बॉन्ड होगा बेटा सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में? यहाँ आयोनिक। आयोनिक। ये तो पक्का आयोनिक बॉन्ड है. Ionic bond, or you can say it is electrostatic bonds, है ना? Now between hydrogen and hydrogen, do you think we have to have perfect sharing of electron between two hydrogen atom? Yes sir. Yes sir. Yes sir। So no charge should be appeared on the hydrogen atom. So it is the example of, you can say, non-polar covalent bond. Similarly, if we have HCl, the hydrogen और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन या क्लोरीन? Chlorine. Chlorine. If chlorine is more electronegative, do you think this bond pair of electron will be more shifted towards chlorine? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. If this chlorine, if this bond pair of electron is more shifted towards chlorine, do you think this chlorine should acquire delta negative charge and this hydrogen should acquire delta positive charge? The partial negative charge. सर डेल्टा का क्या Chlorine- मतलब है? हाँ मैं समझाता हूँ ना. डेल्टा मीन्स पार्शियल, है ना? देखो अगर फुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता तो ये +1 -1 बन जाता है ना. पार्शियल डेल्टा, पार्शियल मतलब लेट्स से स्मॉल, है ना?
So you can say bond pair of electron will be slightly more shifted towards chlorine, as chlorine is more electronegative. It has more tendency to pull these bonded electrons. So chlorine becomes slightly more electron rich. If chlorine is become more electron rich, do you think chlorine acquired partial negative charge? तो यही है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब ये ना नेगेटिव चार्ज. Yes, sir. So you can say HCl as a molecule acquired poles, positive pole on hydrogen and negative pole on chlorine. And this is the example of, you can say, polar covalent bond. थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि पोलर या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मीनिंग क्या है? Yes, sir. पोलर मींस जो दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के बीच में होने वाला है. नॉन पोलर बॉन्ड मींस जो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में होने वाला है. जैसा मैं अगर ये क्लासिफिकेशन से देखना है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड, इट इज H2O, let's say water molecule. This may be suppose CH4. ये कुछ इस टाइप का मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. It is O double bond O here. Similarly, this may be suppose N double bond O. This may be N triple bond N. This may be cesium chloride. तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर बॉन्ड है कि आयोनिक बॉन्ड है बेटा? नॉन पोलर बॉन्ड. पोलर बॉन्ड. इसको मैं ऐसा लिख लूं, नॉन पोलर कोवलेंट. Yes, sir. But sir एक चीज और, Yes, sir. वहाँ पर आयोनिक बेटा ये वाला बॉन्ड कौन सा है? सर पोलर. पोलर बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन पोलर bond. कोवलेंट बॉन्ड है ना. ये वाला बॉन्ड क्या है? पोलर कोवलेंट. पोलर कोवलेंट. ये वाला बॉन्ड नॉन पोलर. नॉन पोलर. नॉन पोलर कोवेलेंट. पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ये वाला बॉन्ड पोलर बॉन्ड. कोवेलेंट. पोलर कोवलेंट. ये नॉन पोलर. नॉन पोलर. नॉन पोलर कोवलेंट. ये आयोनिक. आयोनिक. ये आयोनिक बॉन्ड है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल. बेटा पहले ये समझ में आया इन एग्जांपल से कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? यस सर. सर बट जैसे आपने यहाँ लिखा कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो ऐसी मतलब आयनिक पोलर बॉन्ड्स भी होते हैं या फिर आयनिक नॉन पोलर बॉन्ड्स भी होते हैं क्या? नहीं बेटा, आयोनिक तो हमेशा ही पोलर है ना बेसिकली, है ना. यस सर. सर पर जो आपने ऊपर Cl का एग्जांपल लिया था उसमें आपने बोला था कि वो पार्शियली लेता है, पर वो पूरा एक हाइड्रोजन से एक एटम तो पूरा शेयर करता ही है ना. बेटा वहां है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही वो, बट जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं वो हाइड्रोजन और क्लोरीन के एग्जैक्टली बीच में नहीं है ना बेटा. वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इट इज स्लाइटली मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, है ना. हाँ सर. तो वही तो होता है ना डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. यस सर. नहीं, हाँ सर. जैसा इफ यू सी H एंड O का बॉन्ड, डू यू थिंक हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता, एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन? यस सर. तो H2O में पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. यस बेटा, किसी और बच्चों को डाउट है इसमें किसी को? नो सर. यस, एहसास, अमोल, अर्चित, बेटा कोई डाउट किसी बच्चों को इसमें? नहीं सर, समझ गया. ठीक है, चलो. नाउ बैक टू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. अथर्वा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सिंपल है ना. नाउ एज पर ऑक्सीडेशन नंबर इज कंसर्न,
ऑक्सीडेशन नंबर, कैन वी से यहाँ हाइड्रोजन, दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहाँ जो HNCl है, its oxidation number is found to be +1 and its oxidation number is found to be -1। कैसे आया बेटा ये? जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड था भी उसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया है? 100% Ionic. 100% आयोनिक एज्यूम कर लिया है इसको। एंड ऑब्वियसली जो आयोनिक है पहले से ही, तो उस पे जो चार्ज अपीयर्ड है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। थोड़ा सा क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. सर आपने इसको आयोनिक कैसे कर दिया HCl को? ना बेटा, वही डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या है कि मेरे पास जो मेरे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसको भी मैं 100% आयोनिक लेट्स से हाइपोथेटिकली एज्यूम कर दूं, है ना, तब जो हाँ। चार्ज अपीयर्ड होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है ना। ओके सर। बेटा डेफिनेशन ही कुछ वैसा है ना। हाँ सर। देखो और एग्जांपल से हम लोग देख लेंगे। जैसे सपोज अनदर एग्जांपल इज C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है या आयोनिक है, पोलर कोवलेंट है कि नॉन पोलर कोवलेंट है? पोलर CO कोवलेंट। बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन और कार्बन? ऑक्सीजन। Oxygen. Oxygen is more electronegative. So do you think it have partial negative charge? It has partial negative charge. Carbon should have partial positive charge. So carbon ने how many bonds it formed with more electronegative element oxygen? Carbon. The 4. carbon ने कितने bonds बनाए हैं more electronegative के साथ? 4। तो 4. So do you think +4 should be oxidation number of this carbon? Yes, sir. And this oxygen should be -2 and this oxygen should be -2. बेटा हर एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, है ना। तो बेटा ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव लिखा है, कैन वी से वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है? यस सर। Yes. यस। चलो मुझे अब कुछ और एग्जांपल्स, तुम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करके दिखाना है अभी, है ना। इतना लिख के हो गया तुम लोगों का? Yes, sir. Okay. So next is you have to find out oxidation numbers of, suppose if it is hydrogen and chlorine, मुझे सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने हैं बच्चे, है ना। Similarly, if it is double bond O, it is O and H, let's say H2SO4. Similarly, if it is FeSO4. Similarly, if it is, let's say CrO5, butterfly shape CrO5. Similarly, if it is CaClOCl, it is CaOCl2. It is S double bond O and OH and oxygen. It is double bond O and OH. Let's say it is H2S2O8. Similarly, if it is double bond O and double bond O and O minus, it is permanganate ion. Similarly, it is double bond O and O minus, let's say it is dichromate ion. मुझे सबके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करना है। जैसा इन फर्स्ट एग्जांपल CH3Cl,
The hydrogen is more electronegative or carbon is more electronegative? हाइड्रोजन। ना बेटा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Carbon. कार्बन। Carbon. Carbon is more electronegative than hydrogen. So do you think hydrogen should acquired +1 and +1? Yes, sir. Yes, sir. So due to this, कार्बन पे कितना चार्ज आ जाना चाहिए बच्चे? -3 का। -3 है ना? अच्छा, now the fourth bond of chlorine या fourth bond of carbon, chlorine is more electronegative or carbon is more electronegative? Chlorine. Chlorine. So chlorine should acquired -1. So what is the oxidation number of carbon here? Sir, 2. +2। -2 बेटा। अच्छा हाँ सॉरी। भाई -2 कैसे आया? From 3 hydrogen it will be -3 and from chlorine it will be +1. So -3 + 1 resultant will be -2. भाई फर्स्ट वाला एग्जाम्पल में किसी बच्चे को कोई डाउट है? No, sir. चलो मैं सेकंड एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा। हर एक ऑक्सीजन ने कितने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं सेकंड मॉलिक्यूल में? हर ऑक्सीजन ने 2-2 बॉन्ड। 2. दो बॉन्ड बनाए हैं और दोनों बॉन्ड्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ है कि नहीं है? तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर एज वेल एज हाइड्रोजन. यस सर। So do you think this oxygen should be -2, this oxygen should be -2, this oxygen should be -2, this oxygen should be -2? Hydrogen forming single bond with oxygen and hydrogen is more electropositive should be +1 and +1 each. What is the oxidation number of sulfur here? +6. +8. 8. 6 बेटा. क्यों? क्योंकि सल्फर is forming total 6 bonds with more electronegative oxygen. If you see, sulfur is forming 6 bonds with more electronegative oxygen and thus sulfur should have +6. सेकंड एग्जांपल में किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो यार. सर सल्फर का +6 कैसे आया? बेटे देखो, सल्फर ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ काउंट कर लो. एक बार डबल बॉन्ड, एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड. तो सब मिला के कितने बॉन्ड्स हो गए? 6 बॉन्ड्स. हाँ हाँ ठीक है डबल डबल सिंगल सिंगल है ना? जी सर. सो 6 बॉन्ड्स बनाया तो ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा. ऐसा ही इफ यू सी नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है, क्या नाम है बेटा उस कंपाउंड का? FeSO4 का Ferrous sulfate. फेरस सल्फेट. तो डू यू थिंक यहाँ आयरन पे पक्का +2 चार्ज होता है? यस सर, क्योंकि SO4 Yes. 2 माइनस का होता है। सल्फेट पे ओवरऑल मिला के -2 होता है ना? अच्छा, ये भी समझ में आता है कि जो सल्फेट है वो सल्फ्यूरिक एसिड से ही बना है? Yes, sir. बेटा अगर सल्फ्यूरिक एसिड 2H+ लूज कर देगा तो ही तो सल्फेट बना होगा. यस So do you think यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हर एक का -2. The same as in H2SO4. यस सर। Yes, sir. चलो अब बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी लिखो. You have 2 minutes का टाइम, then we'll discuss. मुझे एक डाउट है. हाँ पूछना बेटा. फर्स्ट वाले के अंदर कार्बन का -2 कैसे आया? देखो, तीनों हाइड्रोजन से -3 आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये बताओ मुझे. सर आएगा. अच्छा, और क्लोरीन से +1 आ जाएगा. सो -3 +1 -2 ही तो बचा बेटा उसमें. ओके सर.
हाँ लिख के हो गया ये। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल समझ में आ गया कि नहीं? आ गया सर। तो बाकी सब भी जल्दी से कर डालो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यस बच्चे, हुआ ये? भाभी का क्या डाउट है बेटा? कैन यू एक्सप्लेन दिस शॉर्ट वन अगेन? आई डिस्कनेक्टेड ट्वाइस, योर वॉइस इज ब्रेकिंग प्लीज। बेटा ये भाभी का हम लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, है ना? हम लोग सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता था किसी पोलर कोवलेंट बॉन्ड को 100% आयोनिक एज्यूम कर लो, तो जो चार्ज अपीयर्ड हो जाएगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसा इन द केस ऑफ CrO5, क्रोमियम फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन? CrO5 में क्रोमियम ने कितने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स बनाए हैं? है 6 बॉन्ड्स बनाए हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी +6 है। ये ऑक्सीजन ने क्रोमियम के साथ कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 2। 2, so it should be -2. This oxygen forming single bond with chromium, this oxygen forming single bond with oxygen, -1 and let's say -1. जितने भी बॉन्ड्स बनाएंगे उतने बॉन्ड्स को हम लोग 100% आयनिक एज्यूम कर ले, है ना? पर सर वो ऑक्सीजन के साथ तो बना ही रहा है ना? बेटा ऑक्सीजन के साथ तो वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ना। हाँ अच्छा ठीक है सर। उससे तो 0 कंट्रीब्यूशन आएगा, है ना? हाँ ठीक है। फिर अच्छा ये नाम क्या होता है? CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है कंपाउंड का? Bleaching powder. वेरी गुड, है ना? दिस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? +2. It is forming 2 bonds with more electronegative oxygen and chlorine. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ? Oxygen is more oxygen is more electronegative than chlorine as well as calcium. बेटा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से, है ना? सर तो इधर -3 आएगा ना? किस पे बेटा? क्योंकि ओ सर ऑक्सीजन पे, क्योंकि क्लोरीन का भी +1 होगा। यस, और कैल्शियम से बेटा ये समझ ना, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं यहाँ? 2 अच्छा, ना? हाँ अगर हाँ 2 सर। बनाया है तो -2 आ सकता है बस, है ना? हाँ ठीक है सर। अच्छा, डू यू थिंक ये वाला जो क्लोरीन है इट शुड बी +1 और ये वाला जो क्लोरीन है इट शुड बी -1? Yes, sir. So in the case of bleaching powder, both chlorine can have different oxidation numbers.
एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, अनदर क्लोरीन हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। सर इस वो कैसे एग्जांपल हुआ? में कौन सा बेटा बता ना, जैसे सर क्लोरीन यहाँ ये -1। यहाँ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कैल्शियम, है कि नहीं है? Chlorine is हाँ more जी सर। electronegative than calcium. It should be -1. And here chlorine is more electropositive than oxygen. So it should be +1. बेटा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। हाँ सर समझ गया। वेरी गुड। जो नेक्स्ट वाला कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज आल्सो नोन एज Marshall's acid. Marshall acid. This compound is also known as Marshall acid. यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सल्फर 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 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है, और ये वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ +6 है ना? As both sulfur are forming 6 bonds each with more electronegative oxygen. Clear? ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन -2 है, ये ऑक्सीजन -2 है, ये वाला ऑक्सीजन भी -2 है, ये वाला ऑक्सीजन भी -2 है। हर एक हाइड्रोजन +12 नहीं होगा, बोथ हाइड्रोजन विल हैव +6 ईच, है ना? अच्छा, हर एक हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया होगा, तो यहाँ +1 एंड +1 है। एंड डू यू थिंक दीज 2 ऑक्सीजन विल हैव -1 एंड -1? These oxygen forming single bond with more electropositive sulfur. Yes, sir. Now, in the case of permanganate, what is the oxidation number of manganese? अथर्वा बेटा, अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा या ऑक्सीजन ने अगर 2 बॉन्ड बनाए होंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ, तो इट शुड बी -2। ऑक्सीजन ने अगर सिंगल बॉन्ड बनाया होगा विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इट विल बी -1। यस मानसी रंजन बेटा, तुम्हारा सही है। अच्छा, मैग्नीज फॉर्मिंग ऑब्वियसली 7 बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, सो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी +7। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता? -2, ये भी -2, ये भी -2। बेटा, ये जो 4th वाला ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -1. बेटा उसका भी -2। क्यों? एक तो नेगेटिव चार्ज उस पर ऑलरेडी है -1, तो बेटा एक तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है ही ना उसके पास, तो डू यू थिंक टोटल चार्ज मिला के -2 अपीयर्ड होता हुआ दिखाई देगा उसके पास? Yes, sir. एक तो -1 Yes, ऑलरेडी sir. और एक मैग्नीज से बॉन्ड ब्रेक करके जो आएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ही in the case of potassium dichromate, what is the oxidation number of chromium there? 6. +6 +6. and +6 है ना? As both chromium forming 6 bond each with more electronegative oxygen. This oxygen should be -2, this should be -2, this should be -2, ये भी -2 है, ये भी -2 है, ये भी -2 है, और ये भी -2 है। क्लियर? सेंटर वाला ऑक्सीजन -2 कैसे हुआ सर? क्योंकि बेटा वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्रोमियम। हाँ सर। तो अगर मैं दोनों बॉन्ड्स को 100% आयोनिक एज्यूम कर लूं, है ना? हाँ सर। बेटा थोड़ा थोड़ा कौन किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है वो समझ सकते हो तुम लोग?
Yes, sir. ऑक्सीजन का -2. तो ऑक्सीजन का व्हाट इज द जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? जनरल इज -2. -2 बट जैसे Minus- साइड में -1/3 हो सकता नहीं हाँ सॉरी मतलब तो यू कैन से जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 है ऑक्सीजन का, है ना? यस सर अच्छा, जैसे पोटेशियम अल्कली मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है इन जनरल? +1 +1. +1. +1. वो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, है ना? यस सर और कहीं अगर सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है पोटेशियम सिर्फ के अपने एलिमेंटल फॉर्म में, 0 तब पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 0, जब वो किसी के 0. साथ कंबाइंड ही नहीं है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ये बोर्ड Yes, पे जो sir. भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बोर्ड पे जो भी एग्जाम्पल लिखा है बेटा, किसी एग्जाम्पल में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसको। यस बेटा, किसी बच्चे को डाउट है कुछ भी? सर वो लास्ट वाले में नीचे वाले ओ में -2 क्यों लिखा है? मतलब -2 क्यों होगा? मैं बताता हूँ। एक तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी -1 है वहां, है ना? तो ऑक्सीजन पे ऑलरेडी -1 है, और एक नेगेटिव चार्ज कहां से आ जाता है? जब क्रोमियम ऑक्सीजन का बॉन्ड 100% आयनिक एज्यूम करेंगे। पर उसमें Yes, सर yes, पहले sir. से कैसे है? बेटा मतलब- डाइक्रोमेट देखो, जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2- है कि नहीं है वो? हाँ जी सर। तो जो 2- का नेगेटिव चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, एक O-, दूसरा O- है ना? ठीक है सर। बेटा वो एनायन है कोई, है ना? नहीं लिख के समझा? यस सर चलो अभी समझा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना? बैलेंसिंग ऑफ redox reactions. In balancing of redox reaction, let's say first example is, suppose it is zinc plus V2O5 vanadium pentaoxide is converting to zinc oxide and converting to, let's say, vanadium. इससे पहले मुझे ये बताओ यार, ये redox reaction है कि नॉन redox reaction है? रेडॉक्स रिएक्शन है. रिडॉक्स है. ऑक्सीडाइज हो रहा है वेनेडियम ऑक्साइड यस, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और वेनेडियम रिड्यूस हो रहा है ना? अच्छा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक हियर? 0, है ना? यस सर Yes. यस, प्रोडक्ट साइड में जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2. +2. वेरी गुड. हर एक ऑक्सीजन -2 होगा बेटा, है ना? अच्छा, रिएक्टेंट साइड में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सर नहीं +5. +5. बेटा ऑक्सीजन -2 होगा ना, ऑक्साइड, और प्रोडक्ट साइड में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 0. 0. अब जल्दी से इस बैलेंस रिएक्शन में कोफिशिएंट्स क्या क्या होने वाले ये भी बता दो यार. जिंक का कोफिशिएंट क्या आएगा? 5. 5. ये सब सारे बच्चे बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन. जैसा लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं बेटा? 5. तो डू यू थिंक प्रोडक्ट साइड में भी 5 हो जाने चाहिए? अब जिंक यहाँ 5 हो गया, और वेनेडियम के कोफिशिएंट को कितने से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 2 से. 2. तो आई होप ये बैलेंस हो गया रिएक्शन. नहीं, बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन? बैलेंस्ड है. अच्छा, ये सारे बच्चे बैलेंस कर सकते थे कि नहीं इस रिएक्शन को? एटम्स कर बैलेंस सकते करना थे सर. क्या एहसास? जी सर। हाँ कर सर सकते ये हो ना? आता है। हाँ सर ये आता है। चलो अब हाँ मुझे सर, दूसरा आता ही है. ठीक है, मुझे दूसरा करके दिखाओ अभी. इफ इट इज आयोडीन प्लस ओजोन
will give I4O9 plus O2. Iodine plus ozone will give I4O9 plus O2. हो गया सर। हाँ रुको, अभी मैं पूछूंगा सब बच्चों से, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं साथ साथ में पैरेलली। यस, किस बच्चे का हुआ था? सर मेरा। हाँ चलो आंसर बताओ, क्या आएगा इसका? सर हाँ, 2I2 2I2 plus 5 ओजोन, plus 5 ओजोन, प्रोडक्ट पे I4O9 यस, plus 3O2। प्लस 3O2। बेटा इसके अलावा किसी बच्चे ने कोई और बैलेंसिंग नहीं किया इसका? बस किसी बच्चे को कोई और आंसर नहीं आ रहा इसका? बहुत सारे आंसर आ सकते हैं यार इसके। आदिनाथ, कुछ और आंसर नहीं आ रहा इसका? नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं? अपर्णा? No, sir, same. सेम? क्या बात कर रहे हैं? अर्चित? ये आंसर नहीं है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ ना। ये जो किसी बच्चे ने आंसर बोला है, ये आंसर नहीं है इसका, है ना? कोई और तरीके से बैलेंस कर ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, क्या बात बोल रहे हो? तो मैं कितने सारे रिएक्शन लिख सकता हूँ बैलेंस से, अब जाए, है ना? चलो 2I2 प्लस ना 2I2, ये कितने भी ले लो, देखो 5 की जगह 6 ले लो, चलो तो ये आ गया I4O9। कितने ऑक्सीजन बच गए यहाँ? सर 7। 7। तो यहाँ 7/2O2 नहीं लिख सकते इसको? लिख सर, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो मैं वही पूछ रहा था तुम लोगों से, तुम लोगों ने बोला कि नहीं सर इसके अलावा हो ही नहीं सकता, तो वो 7O3 लिख लो। अब जा, ये हो गया I4O9। कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ? सर 11। सर सॉरी, ये 12 12। 12। 6O2। 6O2, ये भी बैलेंस है कि नहीं है? चलो और मैं लिख लेता हूं, इट इज 2I2 प्लस 9O3 will give I4O9 प्लस 9O2। ऐसा और भी लिख लो भाई, क्या परेशानी है? 2I2 प्लस 8O3 will give I4O9 कितने ऑक्सीजन? सर 15/2। 15/2, so 15/2O2 and so on। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर बट मेरे को डाउट था कि 7/2O2 तो फिर वो तो सिर्फ 7 सिंपली O है, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन है। ना पूरी रिएक्शन को यार फिर ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर ले, अच्छा सा दिखाने के लिए। अच्छा हाँ, वो कर सकते हैं सर फिर। ना पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता ना, अच्छा दिखाने के लिए। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सबके सब सही है या इसमें से कोई बस एक ही सही होगा? सबके सब सही है। क्या बात कर रहा है? सबके सब सही तो बैलेंस रिएक्शन तो एक ही होगा यार कोई, है ना? सर जो पहला वाला है वो ही सही है। क्यों? सर मेरे को डी वाला लग रहा है शायद। इसमें से बस ये डी वाला ही सही है बेटा, बाकी सब गलत है ना? है ना, बाकी सब गलत है बेटा। बस 1 मिनट रुकना है ना, तुम देखो मैं समझाता हूं क्यों है।
बेटा ये लिखा है तुम लोगों ने कि भाई बाकी सब गलत है एक्सेप्ट डी। हाँ सर। तो यार अभी तक जो तुम लोग बैलेंसिंग करते हो वो सिर्फ किसकी बैलेंसिंग करते हो? एटम्स का, है ना? भाई एटम्स का ही बैलेंसिंग कर रहे थे, बट एज पर एटम्स इज कंसर्न ए बी सी डी ई सब सही है नहीं? तो उसमें एटम्स तो बैलेंस है ही सब में, यस सर, वो तो सारी सही है अभी। बट डी ऑप्शन में एटम्स बैलेंस के अलावा और क्या बैलेंस होगा वहां? इलेक्ट्रॉन और चार्ज भी बैलेंस होगा बेटा, है ना? तो एज पर रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग इज कंसर्न, एटम्स की बैलेंसिंग तो होनी ही चाहिए, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीडेशन नंबर, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, है ना? तो डू यू थिंक वी शुड हैव सर्टेन मेथड टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शंस? सिर्फ एटम्स बैलेंस करके तो नहीं होगा। हाँ सर। ये लिखा है तुम लोगों ने इतना कि नहीं पहले? सर तो फिर एक बार आप इलेक्ट्रॉन वाला भी करके दिखाओ ये सर। हाँ बेटा मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा, है ना? पहले मेथड बताऊंगा फिर करेंगे हम लोग, ठीक है? पहले ये समझ लिया कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग का मेथड सीखने की जरूरत क्यों है? हाँ सर। यस सर। ठीक है चलो, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लिए थे तुम लोगों ने? हाँ सर। यस सर। यस, सो नेक्स्ट इज यू कैन से फर्स्ट रिएक्शन जो मैं तुम लोग को बैलेंस करना सिखा सकता हूं। एग्जाम्पल 1, let's say example 1 is if it is I2 iodine, when iodine treated with dichromate ion in acidic medium is converting to, let's say, IO4 minus, chromium let's say Cr3 plus हो गया है और यहाँ let's say H2O है। सपोज ये कोई टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन है और इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, सपोज, है ना? ये कोई भी टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन है, उस रिएक्शन को सपोज मुझे बैलेंस करना है। अच्छा तुम लोग बैलेंस करने की कोशिश करो, अगर मैं एटम्स की बैलेंसिंग की बातें करें सिर्फ तो जो शायद अभी तक हम लोग को आता है, डू यू थिंक मेरे पास दोनों साइड 2 आयोडीन होने चाहिए, तो 2 आयोडीन कर दिया मैंने, नहीं? अच्छा दोनों साइड 2 क्रोमियम होने चाहिए, मैंने 2 क्रोमियम कर दिया। अब क्या बैलेंस करना बाकी रह गया? ऑक्सीजन ना? अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव? 7। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी कितना है? 2। 9। क्या बात कर रहा है? 9 है। 9। तो यार ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखो साइमल्टेनियसली बैलेंस होंगे नहीं तुम लोगों से, है ना? भाई प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन भी ज्यादा है और ऑक्सीजन भी ज्यादा है ना? हाँ। तो ये तो नॉर्मल एटम्स बैलेंसिंग होगा ही नहीं बेटा, है ना? तो इसके लिए कुछ स्पेशल मेथड हम लोग को समझना पड़ेगा कि कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर या सब कुछ हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, है ना? तो चलो स्टेप 1 क्या है बैलेंसिंग समझने के लिए? स्टेप 1, लेट्स से सेपरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ, है ना? हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को सेपरेट कर लें एंड बैलेंस देयर ऑक्सीडेशन नंबर by adding appropriate number of electrons। जैसा I2 का ऑक्सीडेशन हुआ होगा कि रिडक्शन हुआ है? यहाँ सर ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन। सो डू थिंक ये IO4 माइनस है और डाइक्रोमेट आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है?
ये रिडक्शन हुआ है ना। मतलब या तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर्स के टर्म्स में समझ लेंगे या रिमूवल या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही समझ लो ना बेटा, उसमें क्या है। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। चलो आयोडीन को ही पहले बैलेंस Yes, कर sir. लो। डू यू थिंक वी शुड हैव 2 आयोडीन एंड 2 क्रोमियम हियर? यस और नो? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ Yes, ऑक्सीडेशन sir. नंबर बेटा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? 0. 0. 0 है ना, है कि नहीं है? आयोडीन आयोडीन के साथ ही कंबाइन है। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट सर साइड +8 में +7. बेटा देखो +7 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हर एक ऑक्सीजन क्या होगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर? -2। -2 होगा सर। बेटा हर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा कि नहीं? हाँ सर। तो चारों के चारों ऑक्सीजन मिला के कितना हो जाता? -8। हाँ सर। आयोडीन शुड बी +7 सच दैट रिजल्टेंट चार्ज इज -1। हाँ सर समझा। आयोडीन पे +7 होगा, चारों के चारों ऑक्सीजन पे -8 होगा, तो ही तो रिजल्टेंट चार्ज -1 रहा उसका। यस और नो? Yes यस sir. सर। सर यहाँ पर ऑक्सीजन में -8 है तो इसमें +8 ही आना चाहिए ना। बेटा अगर देखो आयोडीन पे भी अगर +8 आता तो रिजल्टेंट चार्ज 0 नहीं हो जाना चाहिए था इसका, न्यूट्रल। सर रिजल्टेंट चार्ज मतलब? रिजल्टेंट चार्ज मतलब बेटा ये -1 चार्ज है ना इस एनायन पे, हाँ सर। तो वे रिजल्टेंट चार्ज अगर -1 है तो सब मिला के माइनस प्लस से 1 ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ही तो -1 बचेगा। हाँ सर। तो चारों के चारों ऑक्सीजन मिला के -8, आयोडीन शुड बी +7 सच दैट द रिजल्टेंट चार्ज इज -1। हाँ ठीक है सर। चलो बढ़िया। अब ऐसा ही हम लोग किस बेटा? अच्छा, फिर ऐसा +6 क्यों नहीं हो सकता? बेटा देखो अगर +6 होता तो हर एक ऑक्सीजन मिला के -2 -8 था, तो रिजल्टेंट चार्ज उसका -2 होता। फिर जैसा ये सपोज ऑक्सीजन सब मिला के -8 है और रिजल्टेंट चार्ज अगर -2 है, तब यहाँ आयोडीन +6 हो जाता इंस्टेड ऑफ -1। अगर यहाँ ये -2 होता तो, है ना। सर ये कोई रिजल्टेंट चार्ज ही नहीं होता तो? रिजल्टेंट चार्ज ही नहीं होता तो आयोडीन +8 होना चाहिए था। ठीक है सर। चलो जैसे दूसरे वाले कंपाउंड में देखो, डाइक्रोमेट आयन में Cr2O7 2- में सारे के सारे ऑक्सीजन मिला के कितना है? सर -14। -14. -14 है। गुड। -14 है तो दोनों क्रोमियम पे चार्ज कितना होना चाहिए? सर +6। +12. +12। दोनों क्रोमियम पे मिला के बेटा, तो ही तो रिजल्टेंट चार्ज -2 आएगा। हाँ सर। तो डू यू थिंक पर क्रोमियम क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो 6 जाना आ चाहिए? जाएगा। +6। +6. पर क्रोमियम इट शुड बी +6 ना। 2 × +6 हो जाता +12। ऑक्सीजन विल बी -14, सो रिजल्टेंट चार्ज विल बी -2। यस और नो? Yes sir. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस क्रोमियम इज +3, वो तो चार्ज गिवन ही है ना। हाँ चलो अब देखो चार्ज या ये ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है चार्ज, राइट हैंड साइड पे आयोडीन का टोटल चार्ज कितना है? 7 +7. टोटल +7। दोनों आयोडीन का +14. +14। +14। सो डू यू थिंक अगर मैं यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं तो दोनों साइड 0-0 हो जाएगा कि नहीं होगा आयोडीन? Yes sir. यस सर। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। ऐसा ही जो दूसरा वाला रिएक्शन है, क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड सब मिला के चार्ज कितना है? सर +12। +12। राइट हैंड साइड सब मिला के कितना है? +6। +6. सो +12 से अगर +6 बना है, सो वी हैव टू ऐड 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर।
Yes, Yes, sir. sir. तो ही दोनों साइड मिला के +6 हो जाएगा। अब अगर मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना था, बेटा 14 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 14 और 6 42. 42। तो 42 के लिए मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सच दैट डू यू थिंक 42 इलेक्ट्रॉन का लॉस आ जाए और 42 इलेक्ट्रॉन का गेन आ जाए? हाँ सर. Yes, sir. Yes, सो sir. ओवरऑल रिएक्शन देखो कैसा दिखाई देगा। 3i2 प्लस 7 डाइक्रोमेट इज कन्वर्टिंग टू, ये बन जाता 6IO4 माइनस एंड ये बन जाता 14 क्रोमियम 3 प्लस। इतना बैलेंस हो गया कि नहीं? तो यहां तक मेरे पास चार्ज बैलेंस हो गया है बेटा, है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम वी हैव? लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? 49. 49। प्रोडक्ट साइड में कितना? 24. 24. So how many H2O we have to add on this side? 25. 25. 25। दोनों साइड ऑक्सीजन एटम सेम हो जाएंगे क्या? Yes, sir. अच्छा, अब वहां अगर 25 H2O ऐड किया था तो इधर कितने H प्लस ऐड करने पड़ेंगे बैलेंस करने के लिए? Sir, 50. 50 H प्लस। यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. ये देखो ये रिएक्शन ना बैलेंस हो गया है। यहाँ 3 कोफिशिएंट, यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है वो है 7, यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है वो है 50, यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है वो है 6, यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है वो है 14 और यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है वो है 25। सर एक बार वो इंटू मतलब ये इंटू 7 और इंटू 3 से वापस बताओगे? यस बेटा, मैं ये बोल रहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ में जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का तो गेन होगा। भाई ये समझने की कोशिश करना, डाइक्रोमेट ने जो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था वो किसी ने लूज किए होंगे तो ही तो ये गेन कर सकता है। हाँ सर। तो जो सपोज हम लोग फिर ये अगर मल्टीप्लाई करने का पर्पस ये रहेगा ना, एलसीएम ले लेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है उतने इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा। यस और नो? सर एक बार वापस रिपीट करना। मैं बोल रहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है उतने इलेक्ट्रॉन का गेन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो 42 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और 42 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा उसमें। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, फिर से एक्सप्लेन कर सकते कि है ना आयोडीन +7 कैसे हुआ? यस बेटा, ये समझना हर एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है ये बताओ मुझे। ऑक्साइड आयन में O-2 होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, तो 4 के 4 ऑक्सीजन मिला के -8 हो जाना चाहिए था कि नहीं? यस सर। अच्छा, आयोडीन पे +7 होगा तो ही तो यहाँ रिजल्टेंट चार्ज -1 आ सकता है। ओके सर। तो ऑक्सीजन पे सब मिला के -8, आयोडीन पे +7, रिजल्टेंट चार्ज विल बी -1। अभी क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। ये बेटा किसी और बच्चों को डाउट रहेगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एग्जांपल करूंगा। सर उसके बाद क्या करना है फिर? सर नीचे ये +25 H2 और +50 H प्लस वो सब कैसा आया? बेटा मुझे ऑलरेडी पता ही था ना कि रिएक्शन में H2O है और रिएक्टेंट साइड में H+ है। हाँ सर। तो मेरे पास जितने ऑक्सीजन शॉर्ट फिर दिखाई दे रहे होंगे तो मैं फिर नॉर्मल एटम्स का बैलेंसिंग कर लूंगा ना एक बार चार्ज बैलेंस करने के बाद।
हाँ सर। बेटा एक बार चार्ज बैलेंस करने के बाद तो हम लोग नॉर्मल एटम्स बैलेंसिंग कर सकते हैं, है ना? हाँ सर। लिख के हुआ अभी कि नहीं? सर बट फिर इसके हिसाब से तो जो फर्स्ट रिएक्शन था जिंक और वेनेडियम पेंटॉक्साइड वाला, वो भी वो रॉन्ग होगा ना, क्योंकि चार्ज के हिसाब से बैलेंस नहीं था। फॉर्चुनेटली वो बैलेंस था, है ना? चलो देखो अभी मैं उसी रिएक्शन को ले लेता हूँ, है ना? ओके सर। तो वो जो नॉर्मली हम लोग बैलेंस कर रहे थे ना, फॉर्चुनेटली उसमें चार्ज भी बैलेंस हो गया था, है ना? देखो अभी बताता हूँ बेटा, है ना? ये वाला लिख लिया कि नहीं? लिख लिया सर। चलो देखो अब मैं वो वाला एग्जाम्पल तुम लोगों को वापस से दिखाता हूँ, है ना? यही लिखा था ना इससे ऊपर, वो हम लोगों ने क्या था देखो यहाँ, जिंक प्लस वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इज कन्वर्टिंग टू जिंक प्लस वैनेडियम। क्या बैलेंस किया था? यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 5 बैलेंस हुआ था कि नहीं? ऐसे बैलेंस हुआ था कि नहीं हुआ वैनेडियम वाला? हाँ सर। अच्छा, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट विल लूज? बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये? 2। 2। तो 10 के लिए कितना, सॉरी 5 के लिए कितना? 10। 5 जिंक है ना इफेक्टिवली बैलेंस में। हाँ Yes, सर। sir. 10। अच्छा, वैनेडियम का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +5, और यहाँ 0। तो सब मिला के कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े होंगे इसको? सर 10 10 10। 10। तो देखो ये बैलेंस था फॉर्चुनेटली, है ना? बेटा जिस बच्चे ने डाउट पूछा था वो क्लियर हुआ उसका कि नहीं? हाँ सर। हाँ थोड़ा हमेशा ऐसा ऐसा अच्छा सा रिएक्शन नहीं होता है कि नॉर्मल एटम्स बैलेंसिंग करने पे भी चार्ज बैलेंस हो जाए, है ना? तो जैसे देखो ये जो हम लोग रिएक्शन कर रहे थे ये तो नॉर्मली बैलेंस ही नहीं हो रहा था ना, ये तो नॉर्मल मेथड से बैलेंस ही नहीं हो रहा था। भाई 3, 7, 56, 14, 25 ये कोफिशिएंट अपनी मर्जी, हम लोग वैसे नहीं सोच सकते थे ना एटम्स बैलेंस करने से, नहीं? हाँ सर। चलो मैं दूसरा एग्जांपल सिखाता हूँ, शायद थोड़ा सा और क्लियरिटी आए। एग्जांपल नंबर 2, लेट्स से if it is P4 plus let's say HNO3, है ना? P4 and HNO3 is converting to H3PO4 plus NO2 and let's say it is H2O. फास्फोरस ने जब HNO3 के साथ रिएक्शन किया तो H3PO4 बनाया, NO2 बनाया और H2O बनाया। चलो इसको पहले ना नॉर्मल एटम्स का बैलेंसिंग करने की कोशिश करो। बेटा इसको नॉर्मल एटम से बैलेंस करने की कोशिश करो। मतलब मैं करूंगा तो क्या लिखने की कोशिश कर सकता हूं? फास्फोरस लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, डू यू थिंक राइट हैंड साइड में भी 4 होने चाहिए? हाँ सर। नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, इधर भी 1 है उधर भी 1 है नाइट्रोजन, है ना? अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 1। सर 1 है। और प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2। भर के है भाई, 12। 5। 13 है। मतलब भर के है। और ऑक्सीजन भी राइट हैंड साइड में ज्यादा है ना? हाँ सर। तो मतलब ये तो पक्का है ना कि ये P4 वाला कोफिशिएंट आंसर नहीं है ना? मतलब 4s3PO4 वाला आंसर नहीं है ना? उससे तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है। तो देखो उसकी बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन हाफ को अलग करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग करना पड़ेगा, किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सच दैट नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो जाना चाहिए? 0, है ना? 0. चलो अब जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस हियर इन P4 मॉलिक्यूल? 0। 0, क्योंकि फास्फोरस तो फास्फोरस के साथ ही कंबाइन हुआ होगा ना? यस और नो? यस। अच्छा इन द केस ऑफ HNO3
What is the oxidation number of nitrogen? सर +7. नहीं बेटा, प्लस देखो 2 5 Plus आएगा। 5. अच्छा देखो, हाइड्रोजन +1 होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ मुझे। हाँ सर। भाई HNO3 जब आयोनाइज करता है तो H+ एंड नाइट्रेट आयन देता है कि नहीं देता है? Yes, अच्छा, sir. हर एक ऑक्सीजन मिला के -2 होगा। हाँ पक्का सर, पक्का। +5 होगा. तो डू यू थिंक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 बच गया? भाई तो ही तो सब मिला के नेगेटिव चार्ज -6 एंड सब मिला के सर। पॉजिटिव चार्ज +6 होगा, तो ही तो HNO3 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। यस और नो? यस सर. Yes, sir. अच्छा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर NO2 में कितना है? सर +4। +4, क्योंकि दोनों के दोनों ऑक्सीजन मिला के -4 रहा होगा, है ना। चलो अब ये भी बता दो बेटा, H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? सर +5. +5। +5. Plus 5. +5 रहा होगा, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन +1 है और हर एक ऑक्सीजन -2 है। So can we say if we have to separate two reaction, one reaction is P4 is converting to H3PO4 and HNO3 is converting to NO2, in which oxidation number of phosphorus is 0. यहाँ ये 0 से बन जाता +5, यहाँ ये नाइट्रोजन है जो +5 से बन जाता +4। यस और नो? यस सर। ओके, रिएक्शंस को बैलेंस कर लो, तो डू यू थिंक ये बन जाता 4H3PO4? 4 फास्फोरस रिएक्टेंट साइड में है, तो 4 फास्फोरस प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए कि नहीं? यस सर। होने चाहिए. अच्छा, फास्फोरस का लेफ्ट हैंड साइड में सब मिला के चार्ज कितना है? 0। प्रोडक्ट साइड में सारे के सारे फास्फोरस का मिला के चार्ज कितना है? 5. +20। +20. तो वी हैव टू ऐड 20 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ऐसा ही दूसरी वाली रिएक्शन में HNO3 में नाइट्रोजन का चार्ज कितना है? +5. +5, और प्रोडक्ट में कितना है? +4। 4. +4. So do you think we have to add 1 electron here? Yes sir. यस सर। तो एटलीस्ट मेरे पास यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर्स तो बैलेंस हो गया है। दोनों रिएक्शंस को ऐड करने से पहले इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? 20 से। 20 से, सच दैट नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जितने लॉस है उतना गेन का हो जाए। सो रिएक्शन इज P4 plus 20 HNO3 should give, do you think ये बन जाता 4H3PO4 plus 20 NO2? यस सर। हाँ सर। अब मुझे क्या बैलेंस Yes, करना sir. बाकी रह जाएगा? H2O है ना। हाँ अच्छा, रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है बेटा सब मिला के? 20 20 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट साइड में सब मिला के कितना हाइड्रोजन है? 12 12. How many H2O we have to add on this side? 4 4. अब देखो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया होगा, चाहे तो चेक कर लो। अच्छा, वो 20 NO2 है बेटा, है ना। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव 60 ऑक्सीजन एटम। यस सर। राइट हैंड साइड में 60 है कि नहीं है? यस सर, राइट में भी 60 है। बढ़िया, थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए मिल रहा है कि क्या है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ सर। yes एक एग्जांपल अभी तुम लोगों को करके दिखाना होगा। सर इसमें जो into 20 क्यों हुआ? बेटा क्योंकि P4 ने सब मिला के 20 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया था, तो डू यू थिंक वही HNO3 को 20 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? हाँ सर। तो एक मॉलिक्यूल HNO3 का 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वी शुड हैव 20 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। यस सर।
तो इसलिए उसको 20 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। सर एक बार आप पिछले एग्जांपल का दिखा सकते हो, इंटू 7 और इंटू 3 वाला? रुको, बिल्कुल मेरे पास होना चाहिए पिछला वाला एग्जाम्पल। हाँ ये है, देखो। सर इसका एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे फिर? क्या सर वही ये क्यों किया था? बेटा, ये मेरे पास जैसे I2 का अगर देखेगा तो उसने 14 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे और डाइक्रोमेट ने 6 इलेक्ट्रॉन का गेन किया था। हाँ सर। तो मुझे नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जितने लॉस होना चाहिए उतने का ही गेन होना चाहिए। दोनों का सर। एलसीएम 42 था, तो एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, सच दैट 42 इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड 42 इलेक्ट्रॉन का गेन बैलेंस हो गया था। हाँ सर। और वहां ठीक है बैलेंस रिएक्शन हो गया था ना। हाँ ठीक है सर। ये वाला भी रिएक्शन लिख लिया था तुम लोगों ने, P4 वाला। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन दिखाता हूं जहां तुम लोग बैलेंस करना खुद से। नेक्स्ट रिएक्शन, लेट्स से एग्जांपल 3, जो तुम लोग बैलेंस कर सकते हो यार खुद से रिएक्शन। लेट्स से दिस रिएक्शन इज, सपोज CuS plus it is, let's say, MnO4 minus in acidic medium. It gets converted into H2SO4 plus it is Mn2 plus and let's say plus H2O। ये रिएक्शन है, चलो इसको मुझे बैलेंस करके दिखाओ तुम लोग। अच्छा कॉपर भी है एक, है ना। तो यहाँ लेट्स से सपोज ये Cu2 प्लस है, ये रिएक्शन है जो तुम लोग को बैलेंस करना है। CuS plus permanganate ion in acidic medium give H2SO4, it give Mn2 plus। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है बेटा, है ना।
बेटा ये रिएक्शन बैलेंस हुआ सर तुम एक लोगों का? सेकेंड हो रहा है सर। अच्छा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ख्याल रखना है ना। हाँ सर। अच्छा, ये समझ में आता ना कि सल्फाइड आयन में सल्फर -2 होता है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सर +7। +7। +7. H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +6। +6। मैग्नीज में तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है, उस पर +2 है ना। तो किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है बेटा यहाँ? MnO4 माइनस और मतलब सर, मैग्नीज सल्फर का और ऑक्सीडेशन मैग्नीज। नंबर चेंज हो रहा है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना। यस सर। मीन्स एक में मैं रिएक्शन शायद ऐसा लिख लूंगा, CuS कन्वर्टिंग टू H2SO4 एंड यहाँ Cu2+ लिख ही ले, है ना। कॉपर कॉपर तो बैलेंस करें कम से कम। और एक रिएक्शन में मुझे आ जाता पर मैग्नेट आयन, एक रिएक्शन में मेरे पास, अच्छा ये Cu+ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे चार्ज तो बैलेंस करना ही भी नहीं था ना, है ना, वो बाद में लिख लेंगे। पर मैग्नेट आयन इज कन्वर्टिंग टू Mn2+ सच दैट यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ +6 है, यहाँ ये +7 है और यहाँ ये +2 है। कॉपर लिखने की जरूरत नहीं है ना, ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज भी नहीं हो रहा है। हाँ सर। अच्छा, -2 से +6 बनने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज टू लूज? सर 8 ऐड करने पड़ेंगे। यस, 8 इधर मुझे ऐड करना पड़ेगा। +7 से +2 बनने के लिए सर 5 ऐड करने पड़ेंगे। इधर मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? सर ऊपर 5 नीचे 8। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दे, सच दैट नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा? 40 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 40 इलेक्ट्रॉन का गेन। यस और नो? यस सर, यस सर। यस सर। तो यहाँ मुझे अगर बैलेंस करूंगा तो आ जाएगा 5 CuS प्लस, डू यू थिंक ये आ जाता 8 पर मैग्नेट आयन प्लस, अच्छा ये इफेक्टिवली बन जाता 5 H2SO4 प्लस 8 मैग्नीज 2+, है ना। इतना तो बैलेंस हो गया है कम से कम। अच्छा, डू यू थिंक अगर मेरे पास 5 कॉपर लेफ्ट हैंड साइड में है तो एटलीस्ट 5 Cu2+ प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। हाँ कॉपर सर। को तो बैलेंस करेंगे भी। अब बस किसी भी एक को हम लोग बैलेंस कर ले, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। जैसा लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम वी हैव? सर 32। 60. 32. 32। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं बेटा देखो? 20. 20. सर 20 है। 20। सो एक साइड 32 है, एक साइड 20 है, तो 12 ऑक्सीजन का डिफरेंस है शायद, है ना। हाँ सर। यस। इधर कितने H2O मुझे ऐड कर देने चाहिए? सर 12 H2O। 12 H2O ऐड कर देना चाहिए। सब मिला के प्रोडक्ट साइड में हाउ मेनी H+ वी हैव? सब मिला के H2SO4 44. Oh, 20. H2SO4 का भी काउंट कर लेना, है ना। हाँ सर 34। 34. So do you think we should have 34 H+ here? हाँ सर। तो ये रिएक्शन हाँ, बैलेंस होके क्या बन गया? 5 CuS प्लस 8 पर मैग्नेट आयन प्लस 34 H+ प्लस 5 H2SO4 प्लस 8 Mn2 प्लस 5 Cu2 प्लस 12 H2, है ना। और बिलीव मी, अगर मैं इस मेथड से बैलेंस नहीं करूंगा और नॉर्मल एटम से बैलेंस करने की कोशिश करूंगा कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड में है उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड में है, ये कभी बैलेंस नहीं होने वाला रिएक्शन बेटा, है ना। सर इधर 34 कैसे है हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में? देखना, अच्छा प्रोडक्ट साइड में कैसे है देखो, 12 H2O में 24 H+ है कि नहीं है, हाँ सर। और 5 H2SO4 में 10 H+ है, हाँ सर। तो सब मिला के कितना हो गया? 34 हो गया था। 24 + 10, हाँ सर।
तो अभी मेरे पास कॉपर भी बैलेंस है, सल्फर, मैग्नीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब बैलेंस है इसमें। यस और नो? यस सर। तो कुछ ऐसा बैलेंसिंग कर सकते हैं हम लोग, है ना? सर अब हमें 2-3 एग्जांपल दोगे, हम घर पे कर लेंगे बाद में। अरे बिल्कुल मिलेगा यार, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है तू, है ना? रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग अभी देखता हूँ, देखो। कुछ नहीं हुआ, मैं तुम लोग को व्हाट्सएप भी कर दूंगा बेटा, ना एक असाइनमेंट ही बना दूंगा पूरा उसका, है ना? हाँ तो आप ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दोगे ना बाद में? हाँ, ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दूंगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का, है ना? ठीक है ना, मैं ग्रुप पे देखो व्हाट्सएप ही कर दूंगा अभी, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। हाँ ठीक है सर। जैसे बहुत सारे बैलेंसिंग होगा, 7-8 बैलेंसिंग तो होगा, कुछ आसान होगा, कुछ टफ होगा, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, नहीं? आप सर हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है, बढ़िया। मीनवाइल पहले भी पूछ सकते हो बेटा ना, डाउट्स मतलब व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो कि सर ये वाला नहीं हो रहा है, मुझे करके दिखा दो, मैं करके भेज दूंगा, ऐसे करके, है ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है। और बेटा ये जो लास्ट क्लास था उससे रिलेटेड कोई डाउट है तुम लोगों को? लास्ट नहीं क्लास है से सर। रिलेटेड कोई डाउट है? नहीं सर। लास्ट क्लास में हम लोग वो सब पढ़ रहे थे, जिसमें टाइप ऑफ रिएक्शन, बैलेंस, ये वो सब रिएक्शंस पढ़ रहे थे, रिएक्शन के टाइप्स हम लोग, है ना? पढ़ रहे थे कि नहीं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस? हाँ सर। Yes, sir. तो उससे रिलेटेड कोई डाउट है बेटा तुम लोगों को? नो सर। चलो No, मुझे sir. एक रिएक्शन थोड़ा सा और बैलेंस करके दिखा दो, लास्ट आज का, है ना? लेट्स से एग्जांपल 4, you have to balance this reaction. It is, let's say, permanganate ion. It is permanganate ion plus it is H2C2O4, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, it is C2O4 2 minus in presence of acidic medium. It give Mn2 plus, it will give CO2, it will give H2O. चलो बेटा इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो मेरे लिए। रिएक्शन दिखाई दे रहा है? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो। सर उसमें सी में, हर एक सी में +3 होगा ना? बस प्रोडक्ट साइड में नहीं होगा, रिएक्टेंट साइड में +3 होगा बेटा, है ना? ये हाँ। कंफर्म। हाँ रिएक्टेंट का ही पूछ रहा था। हाँ बेटा होगा, पक्का होगा। ये देखो हम लोग सर इस ना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती बेटा, अगर मैं सिर्फ ऐसा भी करने की कोशिश कर सकता हूँ, देखो, है ना? क्या डू यू थिंक यहाँ मेरे पास एज पर कार्बन इज कंसर्न +3 है और मैग्नीज इज कंसर्न +7 है कि नहीं? ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी से हम लोग। अच्छा, यहाँ मैग्नीज +2 है और डू यू थिंक यहाँ कार्बन +4 है? हाँ सर। अच्छा, ये +7 से +2 हुआ होगा। So do you think we have to add 5 electrons here? Yes or no? यस सर। Okay. ऐसा कार्बन में भी डू यू थिंक ये +2 से क्या हो रहा था बेटा यहाँ? सॉरी, +3 से +4 है, कार्बन +3 से +4 की नहीं? हाँ सर हो रहा है। So per carbon how many electron it has to lose? 1। 1। 2 कार्बन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इट हैज टू लूज, है ना? यस और नो? यस सर। तो डू थिंक अगर मैं इसको 2 से और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं,
उसको 2 से और उसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस 10 इलेक्ट्रॉन का गेन आएगा कि नहीं? हाँ और बस अब बाकी सारे एटम्स का नॉर्मल बैलेंसिंग कर दो। जैसा मैग्नीज लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 2, तो देखो प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो जाना चाहिए। कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में 10 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 10 हो जाना चाहिए। सब मिला के ऑक्सीजन को और बैलेंस कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में सब मिला के ऑक्सीजन एटम कितना है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में सब मिला के ऑक्सीजन एटम 28। 28 अच्छा, प्रोडक्ट साइड में सब मिला के कितना था H2O के हटा के? 20 तो एक साइड 20 है और एक साइड 28 है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। हाँ सर। अब हाइड्रोजन के लिए यहाँ अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बैलेंस है। तो ये बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन? यस सर। तो मैं जितना प्रैक्टिस करता जाऊंगा शायद ये रिएक्शन में थोड़ा और जल्दी बैलेंस कर सकता हूँ। हाँ मुझे सर। सेपरेट लिखने की जरूरत भी नहीं है ना फिर। सर ऐसे इतना बड़ा बैलेंसिंग एनटीएससी में आ सकता है? बेटा एनटीएससी कहानी से थोड़ा सा हम लोग ऊपर चले गए हैं अभी, है ना। हाँ सर। एनटीएससी में तो वो सब आएगा बेटा, ठीक है। इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। हाँ सर। मतलब ये समझ सकता था कि ये अभी हम लोग सब 11th में पढ़ना स्टार्ट कर लिया थोड़ा सा, है ना। हाँ सर। 11th में पूरा एक चैप्टर ही है रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। बट आई होप इतना तुम लोग 10th क्लास तक पढ़ सकते हैं, नहीं? हाँ सर, पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट जब तुम लोग क्लास 11th में आओगे ये सब तो याद रहेगा कि भाई रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करने के लिए कोई स्पेशल मेथड होता है, क्योंकि नॉर्मली एटम्स बैलेंस करने से कई बार रिडॉक्स बैलेंसिंग होता नहीं है प्रॉपरली, है ना। नहीं, यही पर्पस है हाँ सर। एटलीस्ट बाकी बच्चे से तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए 11th आने से पहले, है ना। सर अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा उसमें भी सेम ही फॉलो करना पड़ेगा पूरा? यस बेटा, उसमें भी सेम ही फॉलो करना पड़ेगा। बट मैं बता रहा था कि यार वो फॉलो जो तुम लोग कर रहे हो ना वो काफी कम स्टेप्स हो जाएंगे जितना मैं ज्यादा प्रैक्टिस करता जाऊंगा, है ना। हाँ सर। हाँ इस बेटा कुछ और किसी बच्चों को कोई डाउट ऐसा? नहीं, महाराष्ट्र का डेट कंफर्म हुआ कि नहीं अभी तक इसका एनटीएससी का? नहीं सर 13 दिसंबर 13 दिसंबर है 13 ना सर? दिसंबर 13 दिसंबर बता रहे हैं कि करा लेंगे ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। यस, कुछ ऑनलाइन करके करा लेंगे ऐसा ना। नहीं सर, सेंटर पे जाके होगा। हाँ मतलब सेंटर्स पे जाकर सीबीटी ही होगा, कंप्यूटर हाँ। बेस्ड। सर वो नहीं पता। हाँ, ऐसा पेपर पेन नहीं कराएंगे बेटा, है ना। मतलब पेपर पेन शायद इसलिए नहीं कराएंगे मतलब थोड़ा सा और रिस्की हो जाता है ना कि पेपर पेन सारे बच्चों ने लिखा है, फिर किसी एक एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए जाने वाला है ना। हाँ सर। तो मतलब उसमें थोड़ा रिस्क कंटामिनेशन का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, है ना। हाँ सर। कंप्यूटर बेस्ड लिखा लेंगे तो जल्दी से आंसर की भी हो जाएगा ना पूरा का पूरा अच्छे से। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे मैनेज हो पाएगा। अभी तो ऐसा कुछ नोटिफिकेशन है नहीं, है ना, कि कैसे होने वाला है पेपर एंड पेन या सीबीटी क्या होने वाला है। हाँ सर। यस बेटा, कुछ और डाउट किसी बच्चे को?